Now discuss about the intensity of the gravitational field or gravitational field intensity is a vector quantity. Gravitational field means the space around the earth up to which its influence can be felt. That is known as Earth's gravitational field. The space around the earth up to which its influence can be felt known as gravitational field. And gravitational field intensity at a point inside the field may be defined as the force experienced by a body of unit mass placed at that point. For example, suppose it is the earth. At the earth's gravitational field. The gravitational field intensity at a point inside the field may be defined as the total force experienced by a body of unit mass placed at that point. Suppose you want to calculate the intensity at that point. We have to place a body of unit mass at that point. Suppose distance is x. Then it is capital M. So F equals to Gm Mo by x square हो गया force और intensity will be F by m naught. So it is Gm by x square. It is the intensity. I equals to Gm by x square. Clear? So intensity, or you also know that it is also equals to G at that point. So gravitational field intensity is also defined as it is the acceleration due to gravity at that point. So Gm by x square, or it is equals to small g. So it's about the gravitational field intensity. Now we want to calculate the field intensity due to a thin ring at its axis. इस तरह लेके चल रहे हैं. Field intensity due to thin ring at its axis. इसका एक्सप्रेशन निकालना है हम लोग. ठीक, तो is a ring, a radius a, at distance r, p is the point where we want to calculate the field intensity. It is x, and is equals to under root a square plus r square. Suppose this angle is theta. We consider elementary part dl. Suppose small m is the mass of the ring और यहाँ पर एक m नॉट रखा हुआ है. जब भी जहाँ भी इंटेंसिटी निकालेंगे वी हैव टू प्लेस अ बॉडी ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट. नाउ तो अगर हमें मास निकालना है एलिमेंट्री पार्ट का तो पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालो रिंग का. मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग क्या मिलेगा? इट इज m upon 2 pi a. Now mass of the elementary part.
mass of elementary part, dm, total mass divided by total length and multiply by the length of the required portion, dl. ठीक. Now force between m naught and dm, df मिलेगा m naught 2 pi a into x square dl. ठीक. into gmm by r square. तो m naught अपॉन 2 pi a ये मास हो गया इसका, इंटू dl इंटू m naught g by x square. नाउ तो m naught बाई a की वैल्यू हमें, ये 2 pi a है, x स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू dl. ठीक है. नाउ अगर हम इंटेंसिटी निकालना चाहें di, तो क्या हो जाएगा, df बाई m naught, ये हो जाएगा g m बाई 2 pi a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर dl. ये डायरेक्शन होगी di की. रिजॉल्विंग इनटू टू कंपोनेंट, di cos थीटा, di sin थीटा. अगर हम एक और आइडेंटिकल पार्ट ले लें जस्ट बिलो, ये भी di बन जाएगा, इधर di sin थीटा हो जाएगा, इधर di cos थीटा हो जाएगा. तो फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर there is no contribution of the sine component. They cancel out. The field intensity is only due to cos component. एलिमेंट्री पार्ट का कोई साइज फिक्स नहीं होता है, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्ट हो सकते हैं एक रिंग के ऊपर. हमने 2 एलिमेंट्री पार्ट लिए हैं, इसलिए 2 कॉस कंपोनेंट आ गए इधर. ऐसे n नंबर्स हो सकते हैं, या तो आप समेशन फॉर्म में लो या इसको प्रॉपर इंटीग्रेट कर दो. तो अगर हमें i निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, gm बाई 2 pi a स्क्वायर r स्क्वायर, या पहले डायरेक्टली लिख दो, इट इज इक्वल्स टू di cos थीटा. di की वैल्यू लगा दो, जो बाहर है उसको बाहर ले लो, gm बाई कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ले लेते, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos थीटा dl 0 टू 2 pi a, कंप्लीट के लिए लेके चल रहे हैं हम लोग. सो i इक्वल्स टू gm बाई 2 pi a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू लगा दो, r अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर r स्क्वायर, dl का l हो जाएगा l 2 pi a. तो यहां से हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी gm r अपॉन 2 pi a से 2 pi a कैंसिल हो गया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3/2. और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है माइनस i यूनिट वेक्टर, क्योंकि नेगेटिव x डायरेक्शन में आ रही है. तो इट द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट इट्स एक्सिस. रिंग ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं, यूं रखी हुई है. दोबारा देख लो उसको. वी वांट टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग एट इट्स एक्सिस. एक रिंग ले ली और रेडियस a है, r डिस्टेंस पे पॉइंट p है जहां पर हमने एक
यूनिट मास रखा है m0 और यहाँ पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है इस रिंग की। रिंग का एलिमेंट्री पार्ट लिया, एलिमेंट्री पार्ट का हमें मास निकालना था, तो पहले हमने टोटल मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ ले ली रिंग का, जिस पोर्शन का मास निकालना है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो df निकालेंगे वो ये आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो आया वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, रूट हट जाएगा तो ये आ गया। इंटेंसिटी निकालनी है तो मास m0 से डिवाइड कर दिया। इंटेंसिटी डायरेक्शन ये होगी, रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, आइडेंटिकल पार्ट बिलो ले लिया मैंने, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, कॉस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। आपने दो एलिमेंट्री पार्ट लिए इसलिए दो डी कॉस थीटा आ गए। ऐसे पता नहीं कितने एलिमेंट्री पार्ट हो सकते थे, सारे ऐड होते चले जाते। या फिर ये हो सकता है कि आप उसको प्रॉपर इंटीग्रेट कर दो, तो मैंने इसको प्रॉपर इंटीग्रेट कर दिया। कंप्लीट लेंथ निकालनी है तो 2πa ले लिया, कॉस थीटा की वैल्यू लगा दी और gm/r² प्लस a² पावर 3/2 वेक्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि फिर इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो -i यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर? अब लेके चल रहे हैं हम लोग इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनके इक्विवेलेंस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले लेके चल रहे हैं हम लोग इनर्शियल मास। Inertial mass. Inertial mass are related to inertia in linear motion. Inertial mass are related to inertia in linear motion and is defined by Newton's second law in motion. मतलब F equals to ma, where mi is the inertial mass. इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग. If a equals to 1, mi equals to F. Inertial mass is equals to the external force if it produces the acceleration in a body of 1 meter per second square. 1 meter per second square. Then inertial mass of the body is equals to external force. So inertial mass means it is related to inertia in linear motion. और कुछ एक पॉइंट्स हैं कि इनर्शियल मास एल्जेब्रिक सम होता है, चाहे कोई भी डिफरेंट बॉडीज हों. इनर्शियल मास बैलेंस्ड बाय द इनर्शियल बैलेंस और द फिजिकल बैलेंस. इनर्शियल मास डज नॉट डिपेंड द टेम्परेचर. इनर्शियल मास हमेशा ऐड होगा, जो केमिकली हो चाहे वो फिजिकली हो. इनर्शियल मास की यूनिट किलोग्राम होती है. इनर्शियल मास वेलोसिटी के साथ चेंज हो सकता है अगर मास बहुत छोटा है, और एक फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इससे मास चेंज हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि मास शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. मास बहुत छोटा होना चाहिए. इनर्शियल मास डज नॉट डिपेंड द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर टू द गिवन मास. उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो इट्स अबाउट द इनर्शियल मास. नाउ डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल मास. ग्रेविटेशनल मास लेके चलते हैं.
gravitational mass measured by gravitation, and in Newton's law of gravitation, it is defined by the Newton's law of gravitation. मतलब F equals to G m mg by r square, where mg is the gravitational mass of the body. mg is the gravitational mass of the body. अगेन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बन जाती हैं. ग्रेविटेशनल मास की यूनिट किलोग्राम होती है. ये भी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे ये स्केलर क्वांटिटी थी. इट इज मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस एंड it does not depend the प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी. पढ़ेगा अगर बहुत पास हैं तो, वैसे नहीं. और ये थ्रू आउट द यूनिवर्स एप्लीकेबल है, थ्रू आउट द यूनिवर्स एप्लीकेबल है. सो दीज आर द मेन फीचर्स. स्पीड पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है यहाँ चेंज नहीं होता है. अब इनमें इक्विवेलेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है. इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास. Equivalence of inertial mass and gravitational mass. Suppose there are two bodies A and B. There are two bodies A and B, and are equidistant from C means Earth, जिसका मास कैपिटल M है. इक्विडिस्टेंस पर है, इसका mg है और ये m g डैश है. F1 का मतलब है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी. क्या बनेगा? जी एम एम जी बाई, सपोज डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर हो गया. F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई C ऑन B. इक्विडिस्टेंस है तो क्या बनेगा? जी एम एम जी डैश बाई एक्स स्क्वायर. तो F1 अपॉन F2 क्या मिलेगा? mg अपॉन m g डैश. क्लियर? F1 अपॉन F2 ये आ गया. सपोज अगेन टू आइडेंटिकल बॉडीज, और अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, and they are very close to the surface of earth. mi a बॉडी का मास है, इनर्शियल मास है. mi डैश इज द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, और ये दोनों बॉडी पहली बॉडी के आइडेंटिकल हैं. तो अब जो ग्रेविटी लगेगी इस पर F1 क्या होगा? mig. F2 क्या मिलेगा? mi g डैश जी. तो F1 अपॉन F2 क्या मिलेगा? mi अपॉन mi डैश. ये दोनों ही फोर्स सेम बॉडीज के बीच में लग रहे हैं. तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो. mi अपॉन mi डैश इक्वल्स टू mg अपॉन mg डैश. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. means inertial mass directly proportional to gravitational mass. That's the conclusion. Inertial mass directly proportional to gravitational mass. ये इनके बीच में इक्विवेलेंस आ गया. क्लियर?